अब जाहिर है कि लिटरेचर से बड़ी दिलचस्पी थी शुरू से, इंग्लिश लिटरेचर से ख़ास तौर से। तो जब 10th क्लास में हम लोग थे तो एक पोएम पढ़ाई हमें वर्ड्सवर्थ की, वर्ड्सवर्थ द पोएट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ दुनिया में आए थे 1770 में और दुनिया से गए 1850 में। देखो कितने पहले की बात है। तो पोएम जो थी वो थी डैफोडिल से जुड़ी। हम और आगे बढ़े, बीए में आए, एक और पोएम हमें मिली, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून, getting and spending we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours, we have given our hearts away, a sword too. This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are gathered now like sleeping flowers. For this, for everything we are out of tune. It moves us not. Great God, I would rather be a pagan, suckled in a creed outward. So might I, standing on this pleasant beach, have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus coming from the sea, or hear old Triton blow his beat horn. बीए में आए, पोएम समझ ही ना है कि क्या मतलब है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। जब पढ़ाना शुरू किया 1973 में इंग्लिश, तब मालूम हुआ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं हम दुनियादारी में इतने उलझ गए हैं, कोलाहल शोर शराबा चारों तरफ, और हम भूल गए कि नेचर क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, खामोशी क्या होती है। तो आज इस खूबसूरत माहौल पे आके मैंने इस पोएम को पढ़ा वर्ड्सवर्थ की। अब तो मैं खुद वर्ड्सवर्थ की तरह से जीता हूँ। एंड थैंक यू वर्ड्सवर्थ, तुमने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि प्रकृति जहाँ वहाँ आप जाओ वहाँ मिलती है। कहीं भी चले जाओ, प्रकृति हमेशा मौजूद है एंड नेवर फेल्स यू। इस पॉइंट से मुझे आज कुछ समझ मिला। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कोलाहल तो चलता है। It goes on. It goes on. Watching these flowers here, I am reminded of something that is associated with my childhood. I remember in class 10, our teacher told us that today I am going to recite a poem named Daffodils, and it's by William Wordsworth. Since I was not a very intelligent person, I didn't have much idea what he's talking about or what he wants to recite. But he started reciting a poem, I Wandered Lonely as a Cloud, by William Wordsworth. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 that saw at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. The wealth. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Dances with the daffodils. That time I failed to understand the meaning of it all, but today when I have grown up over the years, I can visualize the beauty of daffodils, because in our own country we call them sarson ka phool. This is sarson ka phool, and this is in full bloom these days. So be it daffodil or be it sarson ka phool, nature gives you in bounty. It's all up to you how you receive. Over the years, I have been traveling a lot
and watching all these scenes and enjoying the beauty of nature. And someone, a wise man, sometimes said, back to nature. If you really want to live happily, you have to go back to nature. And that is what I have been doing always. So daffodil reminded me of it all. So I thought it proper to rewind the memory tape. Class 10, ages ago that was in 1965-66. And today I can enjoy, I can feel the bliss that Wordsworth must have felt that time. I am enjoying it today. Time to move further. Here we go. कि बस इधर जंगल में पीछे की तरफ से मुझे भी आवाज़ आई हिरणों की, और मैं एकदम से तैयार हो रहा हूँ, क्योंकि हिरणों का पूरा झुंड मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और मैं इन हिरणों के झुंड को ज़रूर पकड़ना चाहूँगा, गिरफ्त लेना चाहूँगा अपनी, और मैं चलता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। जिनकी तलाश थी आखिर वो दिखाई दे गए, हिरन। ये देखिए पूरा झुंड, एक मिनट रोक के ये देखिए कितना बड़ा झुंड है। चलते रहो धीरे धीरे, बस। ये देखिए कितना बड़ा झुंड दिखाई दिया हिरनों का। इन्हीं की तलाश कर रहा था बहुत देर से। वो कहते हैं ना कि तलाश करते रहो तो कुछ मिल भी जाता है। तो देखते हैं, मिल गए ना फिर। कितनी इत्मीनान से रह रहे हैं, जी रहे हैं जंगलों में ये हिरन। वो देखिए, हाँ, पर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हिरनों का तेज है चेहरे पे, हिरनों की है तुझ में चंचलता। हिरणों की अपनी एक चंचलता है। अगर उनकी आंखों में आप झांक के देखें तो आप ये पाएंगे कि कितनी चंचल सी उनकी आंखें होती हैं। वो भाग गए, देख के एक गए, भाग गए, जल्दी है। चलो खैर देख लो। ये देखिए जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, और कितना मुश्किल है तय करना खुद की दूरी को। ये तो हिरन है, जंगल में है। आज के इंसान की हालत भी तो लगभग ऐसी ही है। इतने करीब से मैं इसके बस 10 फीट पे हूँ सिर्फ, लेकिन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो जानता है कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और इसको कोई डर नहीं है किसी किस्म का डर नहीं है। ये आराम। मस्ती में सबसे ज़्यादा जो साथ देता है वो दिल है, और दिल से जुड़ा हुआ जो गीत मुझे याद आता है, अपनी जिंदा दिली के सहारे हमने दिन जिंदगी के गुजारे, वरना मुरव्वत जहां में और कब्जे में क्या है हमारे। हर चीज़ है दौलत वालों की, हर चीज़ है दौलत वालों की, लेकिन इसका सहारा दिल ही तो है दुनिया में हमारा। दिल ही तो है, दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में हमारा दिल ही तो है। अपनी जिंदा दिली के सहारे, वरना तो था क्या अपने पास, कुछ ख्वाब, कुछ ख्वाहिशें, कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, समय के साथ सब रह गए, और जो सामने रह गए वो ये जज्बात हैं जिनका इजहार मैं अक्सर ही करता रहता हूँ। और मस्ती की बात चल रही है ना, तो मस्ती जो है वह दरअसल बहुत सस्ती है। सिर्फ सोचने की देरी है। किसी भी खूबसूरत जगह पे चले जाइए, नीला आसमान आपका इंतज़ार करता है, ये शजर, ये डगर आप ही की है। बस सिर्फ ये है कि होना इस तरह से चाहिए कुछ कि मन में खिला रहे बसंत और जीवन में खुशियाँ अनंत। ये कितना सुंदर दृश्य मुझे यहाँ इस वक्त दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गया।
गम की सदा कौन सुने, आज खुशी छाई है, होश नहीं दिल की लगी, जाने कहाँ लाई है। हाल ये क्या दिल का हुआ, जैसे रंग ही बदल गया, साज दिल पे कोई गीत गा, हो हो, जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज दिल पे कोई गीत गा, ला 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 ला, इस गीत की खूबसूरती ये है कि ये शकील बदायूनी साहब ने लिखा, जो कि काफ़ी बीमारी से जूझ रहे थे, और बर्मन दादा जो उन दिनों काफ़ी बीमार रहते थे, और रफ़ी साहब जो इतनी जल्दी दुनिया से रुखसत हो गए महज 55 बरस की उम्र में। ये सब मिलकर के जता रहे हैं और बता रहे हैं कि बस झूमने और गाने के लिए ज़िंदगी है, और इन फव्वारों से एक सबक लीजिए कि मुस्कुराते गुनगुनाते अगर ज़िंदगी को जीते रहेंगे तो इतनी ऊंचाई और नीला आसमान आपको हासिल हो जाएगा। और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, संपन्न रहिए। इधर उधर से कांटे चुभते भी रहें तो कोई बात नहीं, क्योंकि कहा था ना अनारकली ने, कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। कितना खूबसूरत मंजर है, नीला आसमान है, ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, कितने सालों पुराने दरख्त हैं। कम से कम 225 साल पुराना ही है ये गार्डन जहाँ पर मैं आ गया हूँ इस वक्त। 1760 के करीब बना था, तभी तो ये पेड़ भी इतने पुराने हैं और दिखाई दे रहे हैं। इनमें मुझे अपने बुज़ुर्ग जो हमें हमेशा समझदारी की बातें बताते थे और हम अपनी उड़ान लेते रहते थे, वो अपने बताते रहते कि ज़िंदगी को जीने का कौन सा अंदाज़ बेहतर है, और फिर हम उड़ान लेते थे। तो ये जो आलम है, मैं एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ बसंत के मौसम में जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, खूबसूरती ही खूबसूरती है। ला 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 रा रा, ला 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 रा 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 रा, हा 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 हा। आसमान देखिए कितना नीला है, कितना नीला आसमान है। इस जगह तो रात को तारे भी एकदम स्पष्ट दिखाई देते होंगे, साफ साफ और खूबसूरत। ये हमारे यही बता रहे हैं कि भाई देखो, चलते रहो। जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि इट इज़ बेटर टू बर्न आउट देन टू रस्ट आउट। आज सवेरे सवेरे यहाँ पहुँचा हूँ, पीछे से जंगल से दहाड़ आ रही है हाथी की, लेकिन मुझे हाथी का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं उसे देखूंगा तो कहूँगा हाथी मेरे साथी, चल थोड़ी सवारी ही करवा दे। अच्छा सोचेंगे ना तो ज़िंदगी में अच्छा ही होगा। ऐ मेरे दिल
अब ख्वाबों से मुंह मोड़ ले, बीती हुई सब बातें वहीं छोड़ दे। तेरे तो दिन रात हैं अब आँखों में दिलदार की, जाग दिल दीवाना रुत जागी वस्ल यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। झील भी है, सर्द हवा भी है, बादल भी हैं और खूबसूरत यादें भी हैं। ये गीत सुबह सुबह मैं इसलिए गुनगुनाने लगता हूँ कि ये सोया सोया सा जो दिल है दुनिया को देखकर, दुनिया की हरकतों को देखकर, इसे मैं जगाने की कोशिश करता हूँ। अरे उठ जा भैया, उठ जा, जरा देख दुनिया कितनी खूबसूरत नजर आ रही है सवेरे सवेरे और तू सोया हुआ है। जो तेरे सपने हैं वो पूरे होंगे, जो तुझे जिंदगी से चाहिए वो तुझे मिल जाएगा, और जो बीत गई सो बात गई, उसका क्लेश करना क्या यार। उठ जा सवेरे सवेरे। अंगड़ाई लेता हुआ दिल कहता है दूर तक कुछ दिख तो रहा नहीं, फिर भी चल कह रहा है तो उठ जाता हूँ। और दिन शुरू होता है। ये एक बड़ा खूबसूरत दिन है, मुझे यकीन है। और इस गीत के साथ शुरू करता हूँ। चित्रगुप्त, मजरू सुल्तानपुरी, रफ़ी साहब और फिरोज़ खान, इन सब की मिली जुली एक कोशिश है ये दिलकश गीत, जाग दिले दीवाना रुत जागी वस्ले यार की। अब मत सोच। एक परी कुछ शाद सी नाशाद सी बैठी हुई, शबनम में तेरी याद की, भीग रही होगी कहीं कली सी गुलजार की, जाग दिले दीवाना रुत जागी वस्ले यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। ऐसे माहौल में दिन शुरू होता है ना, तो यकीन मानिए दिल लगता भी है, वजह चाहे कोई हो। अच्छा, फिर किसी वजह से अगर खुश होने की वजह हम ढूंढते रहे तो वो वजह ज़िंदगी में कभी मिलेगी नहीं। खुश होना है, प्रसन्न होना है, मन लगाना है तो बस यूं ही मन लगा लीजिए, क्योंकि कम है क्या, जिंदा हैं, ताबिंदा हैं, एक उड़ता हुआ परिंदा हैं, और इससे ज़्यादा इंसान को चाहिए भी। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी, पंछी चले अंबर को, माझी चले सागर को, प्यार का नाम जीवन है, जीवन है प्रीतम की गली, धीरे धीरे सुबह हुई। घर जाता हुआ चांद, एक और शहर, एक उम्मीद के साथ शुरू होती हुई, खिले हुए फूल, कहीं जल की कमी, कहीं जल ही जल, एक निराली सी सुहानी सी शहर, भोर सुहानी। प्यार का नाम जीवन है,
जीवन है प्रीतम की गली, धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। ला 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 ला। उनींदा सा शहर, और मैं तो जाग चुका बहुत जल्दी सवेरे सवेरे। दिन की शुरुआत भी हो गई। वहाँ से उगेगा आज का सूरज और ये घर जाता हुआ आधा चांद। ये प्रकृति के करिश्मे हैं, देख सको तो देख लो। मुर्गे की आवाज यानी भोर आ गई। भीनी भीनी भोर भोर आई, भोर आई गया अंधियारा, भोर आई गया अंधियारा, हुआ जग में बहुत उजियारा, भोर आई। इस परिंदे ने भी अपने दिन को शुरू कर लिया। गया अंधियारा। अलसाई सी रात खत्म होती है और जगमगाती हुई शहर आती है। मुर्गे की आवाज़ सुनाई देती है और फिर इस तरह से अगर दिन शुरू होता है तो दिन में दिल में प्रसन्नता रहती ही है। जाग दिल दीवाना रुत जागी, वसल यार की बसी हुई जुल्फ में, आई है सबा प्यार की। ला 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 ला, आहा हा हा हा। बलमा खुली हवा में, महकी हुई फिजा में, दिल चाहता है मेरा बहकना इधर उधर। उसकी वजह ये है कि इतने सारे हिरन मुझे कभी एक जगह कम ही दिखे हैं, और मैं हिरनों के बीच में आकर वही कह रहा हूँ कि बलवा खुली हवा में मेरा मन ये करता है कि मैं इनको देखता रहूं, गाता रहूं, गुनगुनाता रहूं और जूम करके इन्हें अपने इतने पास में ले आऊं। क्योंकि ये जो जंगल सफारी मैंने की है, इसके आखिरी हिस्से तक आते आते इन हिरनों के झुंड को देखना मेरे लिए एक बड़ा सुखद अनुभव है। और आसमान में चांद निकल आया है, क्योंकि अब 3 दिन के बाद में फिर पूर्णिमा आ जाएगी। पूर्णिमा का चांद कुछ अलग होता है, ये चांद कुछ और है। अगर मैं ज़रा सा और आगे बढ़ूंगा तो पक्की बात है ये भाग जाएंगे। अब इनको मैं आराम करने देना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ जितना इनके करीब जा सकूँ थोड़ा सा और जूम करते चले जाओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्योंकि ये जो नज़ारा है ये बहुत कम देखने को मिलता है। और जैसा मैं कहता हूँ ना कभी कभी, क्या मौसम है ए दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए। अच्छा, मैं इतनी दूर निकल आया हूँ लेकिन अभी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब ये जो हैं बड़े मैच्योर किस्म के हिरन हैं, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं और करीब आता जा रहा हूँ, लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा कि ये यहाँ से भागे, क्योंकि भागते हुए हिरन जो होते हैं लगते तो खूबसूरत हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है ये। और इस दृश्य को देखते हुए और उसको जितना चाहो थोड़ा सा जूम करके इस तरह ले आओ कि मतलब याद रहे कि इतने करीब से हमने इन दृश्यों को देखा था। ये हिरन मुझे बड़े ही मधुर दिखने लगा। मैं ज़रा एक क्लोज लुक ले लूँ
क्योंकि ये जो है ऐसा सीन कम कम देखने को, वाह हा हा, ये देखिए ना दुनिया, ये दुनिया देखिए। हाँ, इधर से शुरू करते हैं, यहाँ तक आते हैं। ओहो हो, ये बहुत बढ़िया है भाई, ये बहुत ही मधुर है, बहुत खूबसूरत है। चला गर सफर को यूं ही बेसहारा, तो मैं हो लिया संग लिए एक तारा, गाता हुआ गुनगुनाता हुआ, मैं आशिक हूँ बहारों का। मेरे लिए मतलब बहारों का कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जहाँ भी बहते हुए आबशार दिखते हैं, नदियाँ दिखती हैं, जल दिखता है, मैं वहाँ रुक जाता हूँ और वहाँ मैं याद करने लगता हूँ उस दौर के कलाकारों को। अब ये गीत पिक्चराइज्ड है राज कपूर पे और मुकेश साहब ने गाया है। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये गीत जताता है कि प्रकृति की गोद में अगर आप चले जाते हो तो कितना सुख, चैन, इत्मीनान आपको मिलता है। ये एक अजब सी दुनिया है और मुझे इस दुनिया से बहुत ज़बरदस्त वाबस्तगी है। टेक्नोलॉजी के दौर में मैं इन मनाज़िर को खोजता फिरता हूँ और जबकि बारिशें ख़त्म हो चुकी हैं फिर भी ये आबशार मुझे दिखाई दिए, मैंने इनको खोज लिया। चलते रहो, कुछ ना कुछ हासिल होता ही है। और राज कपूर का जिक्र करें, इस गाने का जिक्र ना करें, इस फिल्म का जिक्र ना करें, बात बनती नहीं। आशिक फिल्म के सभी गीत कमाल थे, बेमिसाल। गाने गा रहे थे एकदम से। कॉलिंग हो रही है काफ़ी तेज। चुप हो गए। कॉलिंग हो रही है ना सर, कॉलिंग, अलार्म कॉल हो रही है। अलार्म कॉल, अच्छा ये अलार्म कॉल है। हाँ फिर है आसपास इसका हाँ, मतलब लेपर्ड है, लेपर्ड हो, हाइना हो। हाइना भी हो सकता है, इतने सारे हिरन पास में। ये देखिए जंगल की आवाज़ है। ये अलग अलग तरह की आवाज़ है। 1 2 2 3 3 4 साथ में बोल रहा है। जी जी, उधर ही चलते हैं, हिरन की आवाज़ भी आ जाएगी कुछ। ये देख मोर की आवाज़, जी जी, मोर की आवाज़ आ रही है, हिरन की आवाज़ आ रही है। और वो सामने मैजेस्टिक चौधरी का चांद। इठलाती हवा नीलम सा गगन, कलियों में है बेहोशी की नमी, ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। मैं थोड़ी देर इनकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मुख्तलिफ आवाज़ है, मोर भी है, हिरन भी है। क्या संगीत है। ये मोर की आवाज़ है। ये कितना सुंदर संगीत है। उधर से उठता हुआ चौदहवीं का चांद, आहा, कितनी मधुर आवाज़ें हैं ये सब। वन की शांति में संगीत है, यही संगीत। आहा, आहा, क्या दृश्य है। डूब चुका है सूरज, उग रहा है चांद चौदहवीं का, और ये आवाज़ें, इतना मधुर संगीत।
ये कहाँ अभी जाने वाले हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। इस दुनिया में अगर चैन अमन ओमान से आप जीना चाहें तो जीने देते कहाँ हैं। अब ये देखिए, ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, ये उन नौजवानों की याद दिलाती है जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए। कॉमनवेल्थ सोल्जर्स थे ये, इसमें हिंदुस्तान के सोल्जर्स भी थे, और उनकी याद में इस स्मारक को बनाया गया है, इस ग्रेवयार्ड को बनाया गया है। मैं कई बार सोचता हूँ कि युद्ध की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बुद्ध के होते हुए क्यों युद्ध? जब आप दूसरे का छीन कर खुद में मिलाना चाहते हैं, जब आप विस्तार करना चाहते हैं तो युद्ध होते हैं। और ऐसा ही कुछ इन सोल्जर्स के साथ में हुआ। ये दुनिया से रुखसत हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र इनकी 22-23 साल की थी, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व। ऐसा नहीं कि युद्ध वहाँ ख़त्म हो गई या दुनिया ने कोई सबक सीख लिया, बिल्कुल नहीं। आज भी धरती के सीने पे इतने युद्ध हो रहे हैं कि लता जी गा रही थी, खुदाए बरतर तेरी ज़मीन पे, ज़मीन की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतह ज़फ़र के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है। अभी 28 सितंबर को मैं लता जी को याद कर रहा था, उनके बहुत सारे गीत मैंने याद किए, और अब इन दिनों मैं रफ़ी साहब को याद कर रहा हूँ, क्योंकि रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी है और 24 दिसंबर को रफ़ी साहब 100 वर्ष के हो जाते हैं। रफ़ी साहब ने भी एक गीत गाया था, कौन है वो जो हमारे भाग्य को तय करता है। इन नौजवानों के भाग्य को भी उसी ने तय किया। रफ़ी साहब ने एक पुरदर्द गीत गाया, बनाए जा बिगाड़े जा, बिगाड़े जा बनाए जा, हम तेरे चिराग हैं, जलाए जा बुझाए जा, हम तेरे चिराग हैं, जलाए जा। बुद्ध यानी प्रबुद्ध यानी शुद्ध समझ गए थे कि इस धरती पर चैन से जीना है तो सुकून इत्मीनान की ज़रूरत है, और सुकून इत्मीनान कभी युद्ध के रास्ते से होकर आएगा नहीं। युद्ध हमेशा नुकसान पहुंचाता है, जीतता उसमें कोई भी नहीं है। आप मान लीजिए कि वो जीता वो हारा, ऐसा कुछ नहीं, नुकसान सभी का होता है। रफ़ी साहब के गीतों को मैं याद करता हूँ, ताज हकीकत जिसका मजहब, फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। ये ऐसे ही पत्थर दिल लोग थे जिन्होंने दुनिया के अंदर संघर्ष करके इन लोगों को दुनिया से विदा किया। ऐसे ही पत्थर दिल लोग। हम दुआ करते हैं कि जो धरती के सीने पे इस वक्त युद्ध चल रहे हैं जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। इतना नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, इतना नुकसान और हो जाएगा। और अगर बुद्ध का पैगाम लेके चलेंगे तो यकीन मानिए कि दुनिया रहने लायक हो जाएगी। वरना प्रलय की खबरें सुनते रहे हैं, एक दिन प्रलय आ भी जाएगी, उससे बचने का एक ही रास्ता है, बुद्धम शरणम गच्छामि। और मान के चलें कि जितना आपका है बस उतना ही आपका है, उससे ज़्यादा पाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे ज़्यादा की पाने की कोशिश होगी तो वो एक ऐसा लालच जो धरती को एक बवंडर में उतार देगा, और फिर दुनिया कहेगी हमने ऐसा सोचा तो नहीं था। जो वक्त पे सीख जाए तो बात बनती है, और उन बादलों से एक रोशनी सी छनती है कि देखो इस दुनिया को रहने लायक बनाओ। ये दुनिया बनी भी इसलिए थी। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। ये एक ऐसी सिमेट्री है जो बड़े ढंग से मेंटेन की गई है। इसलिए मेंटेन की गई है कि जीवन में तो उनके लोगों ने उन्हें सुख नहीं दिया, लेकिन कम से कम यहाँ चैन सुकून इत्मीनान का माहौल बनाया जाए। और इसीलिए मैं यहाँ आकर के प्रार्थना करा करता हूँ कि सब ठीक रहे, दुनिया रहने लायक हो जाए, युद्ध खत्म हो जाए, और बुद्ध का प्रबुद्ध जो ख्याल है वो सामने आ जाए। अब मैं कुछ और आगे बढ़ जाता हूँ।